Okay, good afternoon, everyone. Is it visible? Only 35 students are present. Okay, yes, visible. So in the last lecture, we have discussed about the transaction. We have discussed about the transaction. What is transaction? It means anything under execution that is known as the transaction, and sequence. Sequence of the operations makes the one unit, logical unit, and that is known as the transaction. So we have discussed so many examples, and one example I gave you. Let me recall that I have 100 rupees, and Janil is having a how much 1 crore rupees, and then we transfer something, and we discuss everything. So overview of this unit. Now let's start this unit actually. Now, okay, this is one operation. Read A. A is one variable or whatever you say. In that data is stored in A. Read it means it will read the value of A. For example, as we have discussed, now everyone correlate or imaginate previous example which we have discussed, Janil and me, transfer between Janil and me, right? Same example correlate with this. Read it means first we will check the Janil's balance, whether he is able to transfer or not. Then A is equals to A minus 50. सो 50 रुपीज डिडक्ट किए ट्रांसफर करने के लिए. देन अपडेट दी बैलेंस ऑफ जेनिल. जेनिल का बैलेंस अपडेट होगा. सो राइट ए. राइट ए इट मीन्स जो अपडेटेड वैल्यू है वो राइट हो जाएगा. नाउ रीड बी. इट मीन्स मेरा बैलेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि पता चले ना ट्रांसफर एक्चुअली हुए कि नहीं. ठीक है, फिर मेरे बैलेंस में 50 ऐड करेंगे. बी इज इक्वल टू बी प्लस 50 एंड देन राइट बी. सो मेरा बैलेंस अपडेट हो गया. इट मीन्स यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ. हियर योर एंटायर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, fully completed. So 100% completed, right? Now what will happen if any transaction failed at stage number 3? After stage number 3, what will happen? What we have discussed? Refund. That is the refund only. That is one option. That is refund. तो उसका मतलब क्या हुआ? राज में से कट हो गए, मेरे में अभी तक ऐड नहीं हुए. ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑपरेशंस. Here total 6 operations are there, individual operations. If we combine this one, if we combine all this one, it makes one single logical unit. Work as a single unit, and it is known as the transaction. Clear? Now, first theory, acid properties. Very much important theory, acid properties. So in a transaction, A stands for atomicity, C for consistency, I for isolation, and D for durability. First, we will go through it and then in a detail. Just 1 minute. Yes, Raj, you are right. Either 0% or 100%, that is the atomicity. So first, A stands for atomicity. Either transaction is complete or no transaction. आधे पैसे ट्रांसफर हो ऐसा नहीं. Either complete 100% or 0%. Second one, consistency. So, consistent data must be available whenever the database is accessed after any transaction. It means we have discussed after transaction or before transaction sum should be equal. तो अभी आपको पता चलेगा कि जेनिल में से ट्रांसफर हुए और मेरे में ऐड हुए. So before transaction दोनों का एडिशन, after transaction addition of this two balance will be same. Then we can say that database is consistent, otherwise inconsistent. Now let's do one activity which we have did in the last lecture.
I told you, read loudly everyone, right? If you remember. So same activity we are doing, right? When I say start, speak loudly. Online students, you can also take a part by unmuting yourself. Everyone together, right? Okay? Okay, start. Read this one. Okay, stop. Stop. What happened? Every parallel transactions are going on. Consider yourself as a one transaction. So यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन है? ऑनलाइन में तो कोई नहीं बोला था, सो रहे हैं सब लोग. ठीक है, 4 5 जो भी ट्रांजेक्शन पैरेलली चल रहे हैं वो एक साथ बोले. किसी को कुछ समझ में आया? कौन सा सेंटेंस कौन बोल रहा था? एक फर्स्ट लाइन रीड कर रहा था, दूसरा दूसरी लाइन रीड कर रहा था. सो इनकंसिस्टेंसी तो हो ही रही है, डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है. So whenever we are going to perform parallel concurrency, at that time you need to take care पड़ोसी को पता नहीं चले क्या कर रहे हैं. So transaction detail of one transaction in concurrency in parallel should be unaware or hidden from the another transaction. अब उसका पहले प्रैक्टिकल करूंगा, फिर से सेंटेंस आपको फ्लोट करूंगा. Now everyone has to read this statement in your mind. आपको खुद से रीड करना है. ठीक है, ओके, स्टार्ट. कुछ क्लेश हुआ? कुछ नहीं, आप खुद से रीड कर रहे हो. आप जो कर रहे हो आपको पता है, बाजू वाले को नहीं पता है. ठीक है, दैट इज आइसोलेशन. इजी isolation. So transaction details of one transaction must be hidden from other transaction. That is known as the isolation. That is known as the isolation. Clear? Isolation का मतलब whenever we have a concurrent transaction, parallel transaction, one transaction must be hidden from another transaction ताकि मिक्स ना हो जाए, कंसिस्टेंसी बनी रहे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी का मतलब मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं. अगर जेनिन से मेरे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और बीच में ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया? आइदर यू चेक जेनिन बैलेंस और आइदर यू कैन चेक माय बैलेंस. उससे पता चलेगा. लेकिन क्यों, कैसे पता चलेगा? मैं तो बोल दूंगा मेरे पास तो बहुत सारे पैसे थे, जेनिन ने नहीं ट्रांसफर किए. दोनों का सम करके पता चलेगा कि डेटाबेस कंसिस्टेंट है. ठीक है, अब ड्यूरेबल कैसे बोलेंगे कि सपोज कोई भी मशीन या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ और जो भी हुआ, ठीक है, वो सिस्टम क्लोज हो जाए, शट डाउन हो जाए, जो भी हो जाए, आपका बैलेंस परसिस्टेंट होना चाहिए. परसिस्टेंट मींस सेम होना चाहिए. दैट इज नॉन एज द ड्यूरेबल. थ्रू आउट द टाइम आफ्टर अपडेटिंग इट शुड बी रिमेन सेम. ऐसा नहीं कि अभी ये किया तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद वो फिर से वापस पुराना वाला हो गया, ऐसा नहीं. सॉरी. तो ऑल चेंजेस made by the transaction must remain permanent throughout the database. That is known as the durability. जो भी आप चेंजेस कर रहे हो थ्रू आउट डेटाबेस में परमानेंट सेव होने चाहिए. आप बोलेंगे सर एक बार चेंज हो गया, सेव कर दिया परमानेंटली, तो दूसरी बार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? वेन एवर यू आर अपडेटिंग एट दैट टाइम, जैसे आप अपडेट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा डेटाबेस. लेकिन डेटाबेस कमिट हो गया उसके बाद वो चेंज नहीं होगा. अगर सिस्टम फेल हो जाए, सपोज अभी आपका बैलेंस एटीएम में आपने 1,00,000 रुपये देखा, ठीक है, उसमें से आप विड्रॉ कर रहे हो, 10,000 विड्रॉ हो गया, पैसे निकल गए, लेकिन समरी नहीं निकली, वो चीट निकलती वो नहीं निकली और बैलेंस स्क्रीन पे नहीं दिखा और सर्वर डाउन हो गया. तो क्या होता है? आपका बैलेंस कितना होगा? कैसे निकल गए? 1 लाख का जो हो गया, या समथिंग 1 लाख ही होगा ना, 1 लाख क्योंकि रिसिप्ट नहीं आई. 1 लाख ही होगा. नहीं, मींस रिड्यूस्ड पेमेंट मींस हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 रिड्यूस हो जाएगा, 90,000 रहेंगे, क्योंकि
सर्वर आपका कब डाउन होगा? पैसे निकलने के बाद, सिर्फ समरी और व्यू बैलेंस डिस्प्ले नहीं हुआ था, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ? आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो गया डेटाबेस में, ठीक है, तो वो परमानेंट हुआ है। वरना तो क्या हुआ, क्या होगा? सर्वर डाउन हो गया तो आपका लाख के लाख ही होगा। तो हर बार आप ऐसा ही करेंगे, जानबूझ के सर्वर डाउन कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे मशीन की। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो परमानेंट चेंजेस होने चाहिए, जो भी आप अपडेट कर रहे हो। दिस इज एसिड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी इन अ डिटेल atomicity. This property states that in a transaction either all its operation are executed or none of the operation will execute, ठीक है। so 0% or 100%. Example, transfer. Same example we are going to take for the four properties. Consider a transaction to transfer 1000 from account A to B. A to B से हम 1000 कर रहे हैं, ठीक है। So if 1000 is deducted from account A, then it must be added to account B. Else, in case of error, it must be added back to the account A. It means क्या हुआ? Either 100% or 0%. Clear? Next one, consistency. Data value must be available after any transaction, consistent before the execution of transaction, and after the execution of transaction, it should be remain same. For example, account A is equals to 5000 and B is equals to 3000. So amount to be transferred from A to B 1000 rupees आप ट्रांसफर कर रहे हैं। So after deduction कितने होंगे? A का बैलेंस 4000, B का 4000 0 2000 कौन बोल रहा है? अब बी का 3000 है, सॉरी अब नीचे नहीं, बी। चाय पानी नाश्ता कुछ चाहिए? अरे नहीं, वो सेंटेंस में लास्ट में 1000 था तो मैंने उसमें 1000 ऐड क्योंकि किया। इतना सिंपल कैलकुलेशन गलत बोल रहा है, या फिर नींद में है या फिर भूख लगी है। नहीं 4000 हो ओके गया। फाइन, यस। ए में से बी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ए का बैलेंस 4000, बी का बैलेंस भी 4000 रहेगा। दोनों का सम करो तो कंसिस्टेंट बना रहा, पहले और आफ्टर और बिफोर। सो दिस इज कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, आइसोलेशन. Details of one transaction must be hidden from other transaction until the transaction is committed. अब committed पे हम आ गए। committed का मतलब सेव ना हो तब तक। क्यों? रीजन क्या committed का? Suppose we are the two operator who is going to access the same account. For example, आप ये स्लाइड कोई अकाउंट ले लो, ठीक है, स्लाइड कोई अकाउंट ले लो। आप एक खुद यूजर हो, मैं दूसरा यूजर हूँ, पैरेलली इस स्लाइड को एक्सेस कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आगे भी आएगा, याद रखना। पैरेलली इसमें से हम कुछ ले रहे हैं। मैंने आइसोलेशन ले लिया, आपने आइसोलेशन ले लिया, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आइसोलेशन की बजाय इंस्टॉलेशन लिख दे रहा हूँ। आपने तो आइसोलेशन ले लिया, मैं फिर अपडेट कर रहा हूँ तो इंस्टॉलेशन हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि मैंने भी डेटा स्लाइड से ही लिया, मैं बोला मैंने भी स्लाइड से ही लिया, तो कंसिस्टेंसी नहीं बनी, तो डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। तो आइसोलेशन में कमिटेड ना हो तब तक आपको रीड ही नहीं करना है। जैसे बैलेंस में सपोज 10 लाख रुपीज है और आप और आपका भाई दोनों आपके फादर का अकाउंट एक्सेस कर रहे हो राइट से, आप ऑनलाइन कर रहे हो, वो चेक से कर रहा है या फिर वो भी ऑनलाइन कर रहा है, ठीक है। तो उसका ट्रांजैक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होना चाहिए जब तक दूसरे का ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए, सेव ना हो जाए, तब तक। अदरवाइज क्या होगा? आपने एक ट्रांजैक्शन, एक ऑपरेशन 10 लाख में से 1 लाख विड्रॉ कर ली है, तो वो बोलेगा 9 लाख ही बैलेंस है, कल तक तो 10 था। फिर से आपने 1 लाख विड्रॉ कर लिए, तो उसके माइंड में तो क्या है? 9 लाख ही है ना, वो 9 लाख समझ के ही 9 लाख विड्रॉ करेगा, लेकिन एक्चुअली 8 हो गए क्योंकि आपने 2 बार विड्रॉ कर लिए। तो आप जब तक कमिट नहीं करेंगे तब तक उसको सही डेटा नहीं मिलेगा, तो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होने वाली है। दैट्स व्हाई
So intermediate transaction result must be hidden from the concurrent transaction. जब तक fully complete ना हो तब तक वो hidden होने चाहिए. Durability. So whatever changes you are doing in a database, that must be persistent. Persistent, it means throughout the database it must be permanent, it remains the permanent. So after transaction completes successfully, the changes to database must be permanent even if system fails. सिस्टम फेल हो जाए तो भी आपका वही रहना चाहिए. सपोज मेरी पीपीटी अभी 2 स्लाइड इसमें ये ड्यूरेबिलिटी, फॉर एग्जांपल ये रहा 5000, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस 3000. अभी पावर ऑफ हो जाए, मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाए और मैं फिर से ओपन करूं पीपीटी, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. दैट इज ड्यूरेबिलिटी. समझ में आया? अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा? ए का बैलेंस 10,000 हो गया, बी का बैलेंस 1000 हो गया. डज इट मेक सेंस? वैसे तो बैंक में सर्वर रोज बंद करो, यूपीएस बंद करो तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा. परमानेंट आपका डेटाबेस सेम रहता है. सर यस. तो फिर सर कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस क्या रहेगा? कंसिस्टेंसी का मतलब ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी सिमिलर ही है, लेकिन 3 लाइन है. ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन अगर आपका फेल हो जाए और कुछ भी हो जाए तो डेटाबेस परमानेंटली क्या होना चाहिए? रिमेन सेम. और कंसिस्टेंसी में क्या कि आप जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हो और दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, तो दोनों का सम लाइक सम एडिशन सेम रहना चाहिए. सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट्स हैव एग्जांपल कि आप मुझे, आपका बैलेंस 2000 है और मेरा बैलेंस 1000 है. आप मुझे 1000 ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों मिला के 3000 हो गए और आप मुझे ट्रांसफर कर रहे हो 1000 और मेरे में 4000 आ रहा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी. ठीक है, दैट इज इनकंसिस्टेंसी. दूसरा एग्जांपल आपको दूं, क्रॉस प्रोडक्ट और आपने उसमें देखा 102 और 103, तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा है. उसका मतलब क्या हुआ? आप डेटा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग आ रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है. दैट इज इनकंसिस्टेंसी. और इसका ऑपोजिट कंसिस्टेंसी. राइट? यस सर, गॉट इट. Okay, fine, thank you. So yes, example, initial amount account A is equals to 5,000 and account B is equals to 3,000, and amount to be transferred from A to B is 1,000. Same example. So after the transaction is completed, amount in account A should be 4,000 and account in B should be 4,000. दोनों में रिफ्लेक्ट परमानेंटली होना चाहिए. आप अभी रीड करोगे तो भी ये 4,000 ही रहेगा. मैं अपलोड करूँ ई कंटेंट में, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे रीड करना तो भी 4,000 ही रहेगा. ठीक है? सो दैट इज ड्यूरेबिलिटी. परमानेंट चेंज. ड्यूरेबिलिटी मींस परमानेंट चेंज. लर्न टू इन शॉर्ट that this change should remain permanent until some other transaction changes any accounts amount. तब तक वो चेंज नहीं होना चाहिए. दैट इज ड्यूरेबिलिटी. क्लियर? दिस इज acid properties. Now, as I told you, while we are transferring money from one account to another account, and while you are purchasing something from online, and in between if transaction fails, then what will happen? Refund, return आपने बोला था, ठीक है? So these all are the possibility. So now let's start with this state diagram or state transition diagram, or we can say that life cycle of transaction. So first state is the active state. First we will see the states and then we will see the diagram. Active state is the initial state where the transaction will be in execution mode. So this is the initial state, and this transaction remains in this state while execution में होगा तब वो एक्टिव स्टेट में रहेगा. एक्टिव का मतलब वही हुआ. जस्ट 1 minute.
यस। सेकंड पार्शियल कमिटेड, मैंने एग्जांपल आपको दिया था, क्या दिया था कि कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ डिटेल आप ऑलरेडी सेव करते हैं, अमेजन में आपकी कार्ड की डिटेल सेव करके रखते हो, उसमें पार्शियल कमिटेड, पार्शियल सेव। जस्ट 1 minute guys. Okay, sorry for the interruption. Partial committed, it means some in some website we are storing our data every time, no need to enter that data, that is partial committed. Or we can say that in this state the transaction actually enter in its last operation, એટલે કે અડધું સેવ કરી દીધું. Partial, it means up, partial committed. And failed state, name suggests its meaning, execution cannot be performed due to some errors. Errors can be anything, right? So once transaction cannot be completed, any changes that it made must be undone, rolling it back, that is return, roll back, वापस फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा एक्टिव से, फर्स्ट से दूसरी बार स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके ऑनलाइन होता है, ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, अगर कमिट नहीं हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, पहले से स्टार्ट कर रहे हो। अगर कमिटेड है तो जहां से स्टॉप हुआ है वहां से स्टार्ट होगा। दूसरा एग्जांपल, मोस्ट ऑफ बॉयज को पता होगा, गर्ल्स को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो। While you are playing any game, Counter Strike, PUBG, every time you are starting from level 0? No. Why? Checkpoints and save points are there कि आपका ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन के रिलेटेड नहीं है, चेक पॉइंट्स का एग्जांपल आपको समझ में आए इसलिए। सपोज आप एक पॉइंट से थोड़ा आगे हो गए और वहां से फेल हो रहा है, बैटरी शट डाउन या फिर फोन कॉल आ रहा है, तो कहां से स्टार्ट होगा, नजदीक वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां पे आपका कमिट हुआ होगा, पार्शियली कमिटेड, दैट इज, ठीक है। Committed, it means saved. So it is the state where a transaction has completed all its operations and changes to the database are reflected. Are reflected, that is most important thing. आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे जेनिल मुझे 50 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है, तो मेरे अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होगा, तभी मैं मानूंगा ना उसको 50 ट्रांसफर किए, वरना तो वो सिर्फ मस्का बनी लगाएगा कि सर मैं ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, उस टाइप का हुआ, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट होगा तो इस कमिटेड स्टेट में वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए,
So we cannot abort or roll back a committed transaction. Now abort or roll back means back, वापस लेना, ठीक है? Abort का मतलब ये हुआ. Aborted it means the transaction has been rolled back and the database has been restored to start of the transaction state. Transaction state start करने के लिए restore होगा, फिर से start करने के लिए, beginning from the beginning. अगर आपका स्टेप कमिटेड हो गया तो आप रोल बैक भी नहीं कर सकते और एब्रोड भी नहीं कर सकते. मैन्युअली आप क्लोज कर रहे हो कोई ट्रांजैक्शन, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गया है. समझ में आ रहा है? सो दीज ऑल आर दी स्टेट्स: एक्टिव, पार्शियल कमिटेड, फेल्ड, कमिटेड एंड एब्रोटेड. नाउ लेट्स सी द डायग्राम, लाइफ साइकिल. So this is our active state in which transaction remains in execution mode. Second state, एक्टिव में से पार्शियल कमिटेड. पार्शियल कमिटेड में क्या रहेगा? लास्ट ऑपरेशन में रहेगा और पार्शियली कमिटेड. नेक्स्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी, एक्टिव में से फेल हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि आप पार्शियल कमिटेड हो, उससे पहले फेल हो गया तो ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है. फेल से और पार्शियल कमिटेड होने के बाद भी फेल हो सकता है ना, तो डायरेक्शन हमने इस तरह दी. और फेल होने के बाद क्या होगा? एब्रोटेड. तो इफ any of the text fails and the transaction has reached any failed state, then the database recovery system will make sure that the database is in its previous consistent state. तो जो भी पहला consistent state है उसमें आ जाना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन टेक केयर करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, उसके आगे पार्शियल कमिटेड के बाद कमिटेड होगा. तो कमिटेड के आगे क्या होगा? एंड. और एब्रोडेड के बाद भी एंड ही होगा. और एब्रोडेड में एक मैं चीज बोलना भूल गया कि आफ्टर एब्रोडिंग एनी ट्रांजेक्शन, रिकवरी मॉड्यूल, क्योंकि आप बोल रहे हैं रिटर्न, रिकवर, ठीक है. सो रिकवरी मॉड्यूल विल सिलेक्ट आइदर टू ऑपरेशन. फर्स्ट वन, रीस्टार्ट द ट्रांजैक्शन, पहले से स्टार्ट करेगा, या फिर किल द ट्रांजैक्शन. सो आप कर रहे हो विंडोज में, कभी कभार हैंग हो जाता है, आप क्या करते हो? टास्क मैनेजर में से किल कर देते हो प्रोसेस को, ठीक है. दूसरा क्या करते हो? कंप्यूटर रिस्टार्ट कर देते हो. ये दो ऑप्शन कर सकते हो. I don't know how many of you are aware with the recovery department in any bank. बैंक में रिकवरी डिपार्टमेंट होता है. उसका काम क्या होता है? आपने सपोज लोन ली है, आप लोन टाइम पे नहीं भरपाई कर रहे हो, तो वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी असेट्स है उसको रिकवर कर लेंगे, लॉक कर देंगे, सील कर देंगे. ठीक है. आपने वो मूवी तो देखा होगा, सीरीज, कौन सी? स्कैम 2021 ना, बोला वो अरशद मेहता वाला स्कैम, उसमें आता है ना रिकवरी का. ठीक है. So this is the life cycle. Agree? Done? So whenever they ask, explain transition state diagram, life cycle of transaction, you need to draw this diagram. You need to explain each and every step in detail. यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाया, आपको डिटेल में समझाना है. ठीक है. क्लियर? एनी क्वेरी? Next, transaction operations. We have two operations. Generally, there are lots of operations, but we are considering only two operations, and rest of operations we are not considering right now. For the easy understanding, we are considering only two. First one is the redex, and second one is the writex. Redex का मतलब क्या हुआ? रिडेक्स का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? What? Yes, exact. It will read the value of X. Whatever we have stored in a X, it may be a database, it may be a variable or whatever. It will read, or it may be a file, whatever. So this operation is mainly used for accessing the data from the database.
सो एक्स नाम का टेबल है आपका, तो उस टेबल को वो रीड करेगा, दैट इज द नोटेशन। सपोज इफ आई से रीड अकाउंट, इट मींस अकाउंट टेबल को वो रीड करेगा। गेटिंग? We transfer the data item access from the database to the local buffer or memory. Actually, readx का मतलब ये हुआ, it will read the data from the database and it will transfer that data into the buffer. Generally, आपको नेटवर्क का पता है कि नहीं, आई डोंट नो। नेटवर्क में जनरली यही होता है। ओके ओके, प्रिंटर का एग्जांपल आपको बताऊंगा। प्रिंटर आप दे रहे हो तो उसमें, कोई भी प्रिंटर में प्रिंट दे रहे हो तो उसमें एक बफर आता है। उसका मतलब क्या है, जो भी आप कंट्रोल की करके प्रिंट दे रहे हो वो पहले बफर में जाएगा, बफर में से आपका प्रिंट होगा। आप प्रिंट देने के बाद केबल निकाल देंगे ना, फिर भी आपकी प्रिंट आएगी। क्यों? क्योंकि बफर के इंटरनल बफर में, इंटरनल स्टोरेज में वो आपका डेटा स्टोर्ड है। सो रीड एक्स का मतलब वही हुआ। राइट एक्स का मतलब क्या हुआ? इट विल राइट द कंटेंट इनटू एक्स। So this operation is mainly used for updating or modifying the data into the database. So database में write करने के लिए, so it updates the data of the database as the result of any transaction been executed, has been executed. जैसे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका रिजल्ट डेटाबेस में राइट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था रीड ए, इट मींस जेनिल का बैलेंस रीड किया ताकि पता चले हमें ट्रांसफर करना है। फिर ट्रांसफर किए मनी, और फिर उसका जो जितने मनी ट्रांसफर कर रहे हो उतना बैलेंस हम राइट कर देंगे ताकि डेटाबेस में अपडेट हो जाए, ताकि जनील को भी पता चले कितने रुपीस ट्रांसफर किए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, schedule. Next is the schedule. What do you mean by schedule? If producer, sir, after being failed, can't a transaction be queued for retry? Sir, after being failed, can't transaction be queued for retry? Exactly, I am not getting deep, but based on your question, I am getting that कि failed transaction के बाद वो retry करने के लिए क्यू में रहेगा कि नहीं रहेगा। बट ऑब्वियस फेल हो गया तो अपलोड करके एंड हो जाएगा, क्योंकि फेल्ड के बाद सीधा एंड ही होगा, और एंड के बाद वो स्टार्ट से एक्टिव से स्टार्ट हो जाएगा। आपका कभी ऐसा हुआ कि आपका एक स्टेट पे पेमेंट स्टॉप हो गया और वहीं से स्टार्ट होगा? मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, पहले से स्टार्ट होगा ना फेल होने के बाद। व्हाट आई मीन बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन, एम आई राइट दीप? ओके, तूने जो क्वेश्चन पूछा था, अंकुर, is to plan transaction in future, schedule a timetable or the sequence upon which a set of events are to be done. Yes, good, right. Schedule, it means plan or timetable, whatever. Based on that schedule, we are going to perform the activity or task or transaction, right? So schedule is the process of grouping and ordering the operations of transaction in a database. First A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, कुछ order change करो या फिर group बनाओ. So this is known as the schedules. In short, we can say that sequence of operation. Is it schedule? Sequence of operation, is it schedule? Yes. So schedule is a sequence in which all the operations are executed. A schedule is required in a database because when some transaction execute in concurrently or in a parallel, they may affect the result of the transaction, which we have discussed earlier. आप parallelly कर रहे हो transaction, तो उसमें कुछ फिक्स नहीं होगा। जैसे कि ये पीपीटी में आप अभी बैलेंस 5000 देकर रीड कर रहे हो और कोई स्टूडेंट अभी सो रहा है, 2 मिनट के बाद मैं 5000 का 3000 कर रहा हूँ, तब वो स्टूडेंट जग जाएगा, तो वो बोलेगा कि सर 3000, आप बोलेंगे 5000। नक्की क्या करना?
ठीक है. So whenever we are talking about concurrency, parallel, at that time schedule must be there. शेड्यूल होना ही चाहिए. जैसे देखो आपके क्लास कितने TC1 TC2 TC3, उसका अगर शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, एक क्लास पे सारे फैकल्टी आ जाएंगे. मैंने एग्जांपल दिया था. और आप भी एक क्लास पे लोकेशन पे सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. सो शेड्यूल मस्ट बी देयर, राइट. If transaction is updating the data into the database and the other transaction at the same time is accessing the same data, then the result of database is fully dependent on the sequence of this transaction. उसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 2 3 4 5 ले रहे हो, ठीक है. तो 4 इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, 3 इज डिपेंडेंट ऑन 2. सीक्वेंस चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, फिर भी वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा. पहले 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए. जैसे मैं अटेंडेंस आपका रोल कॉल करके ले रहा हूँ, तो पहले एनरोलमेंट नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ऐसे होना चाहिए ना. समझ में आ रहा है. सो शेड्यूल, this is the example of schedule. Suppose we have a 2 transaction. Consider this slide with open eyes. T1 and T2, these two are the transaction. दो separate transaction है. उसमें ट्रांजेक्शन T1 में एक शेड्यूल दिया है कि पहले रीड ए होगा, A इज इक्वल टू A माइनस 1000, राइट A, रीड B, B इज इक्वल टू B प्लस 1000, राइट B एंड कमिट. कमिट का मतलब सेव, डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गया. कमिट का मतलब डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है. अब देखो सेम ट्रांजेक्शन T2 क्या कर रहा है, रीड A, T इज इक्वल टू A इंटू 0.7, A इज इक्वल टू A माइनस T, राइट A. ये सारा ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ए के ऊपर. ए अपडेटेड कहाँ पे होगा, T1 में, क्योंकि शेयरिंग में है ना ए. तो सपोज दोनों पैरेलली चल रहा है तो दिक्कत क्या होगा, एक 1 बाय 1 स्टेप हो रहा है. सपोज रीड ए कर लिया आपने, ठीक है, तो आपने बैलेंस 2000 रीड किया, ठीक है. फिर मैं ट्रांजेक्शन T2 उसका रीड ए कर रहा हूँ, तो उसने भी 2000 रीड किया. सपोज ट्रांजेक्शन T1 A इज इक्वल टू A माइनस 1000, तो अभी A की वैल्यू कितनी हुई, 1000, 2 माइनस 1, 1000 हो गया. अब ट्रांजेक्शन T2 फिर से रीड ए करेगा तो कितना मिलेगा, 1000. तो इनकंसिस्टेंसी हुई. और T इज इक्वल टू A इंटू 0.7, सो 1000 इंटू 0.7, तो कुछ वैल्यू अलग मिलेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि while you are performing parallel at that time schedule must be there, कि पहले इसको करने होने दो, 1000 रुपीज कट होने दो, उसका कमिट होने दो, फिर T2 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा, तब पता चलेगा. उसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको लाइव दे रहा हूँ विथ डेमो. लेट मी स्टॉप दिस स्क्रीन. Just 1 minute. ओके, सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा. चलो, सपोज दिस इज द वेरिएबल A. इन वेरिएबल A आई एम स्टोरिंग 5000. तो अभी आपको क्या इमेजिनेट करना है, रोल प्ले क्या करना है. I am one transaction, you are another transaction, you all are consider yourself as a transaction. So lots of parallel transactions are going on, right?
lots of parallel transactions are going on variable A. तो ये स्लाइड पे आपको शेयरिंग में दिख रहा है वो ए है और हम सब लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं शेयरिंग में, ठीक है। तो अभी आप सब मन में रीड करना, कितना है 5000, ठीक है। अभी 4 लोग रीड नहीं किए, उसको मैं कर दे रहा हूँ 3000, ठीक है। अभी 2 लोग फिर से अनरीड रह रहे हैं, मैंने कर दिया 9000। अब मैं 5 लोगों को पूछूंगा तो आंसर क्या मिलेगा 3000, 5000, 9000। तो व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग पैरेलली, कॉन्करेंसी कंट्रोल करना जरूरी है। कॉन्करेंसी इट मींस पैरेलल। कॉन्करेंसी जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो उसका रीजन क्या, उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो उसका तरीका एक ही है। लेट्स से 5000, तो आप क्या करेंगे, सर पहले आप लिख लो बाद में हमें बोलना। उसका मतलब क्या हुआ, आप पहले कमिट कर दो, फिर आप हमें बोलना कि कितना बैलेंस है, तो भी हम आंसर देंगे, तभी आपका आंसर सबका सेम रहेगा। तो आई विल से a इज इक्वल टू 5000, नाउ यू रीड इट। तो आप सब लोग 5000 रीड करेंगे, बट व्हाइल आई एम डूइंग द अपडेटिंग समथिंग लाइक दिस एंड यू आर रीडिंग, बट ऑब्वियस इट विल बी कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्ट ही होने वाला है, क्लेश ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो शेड्यूल हमें कैसे करना है, इसका कुछ शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना, कि मैं पहले लिख लूं फिर आप रीड करो। व्हाइल आई एम राइटिंग डोंट रीड इट, राइट। तो ऐसा कुछ शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सो दैट इज द शेड्यूल। तो T1 और ये एग्जांपल हमारा कहाँ गया, ये रहा, ये T1 एंड T2 है। देखो रीड a इज इक्वल टू a माइनस 1000, ये पैरेलली देखो, पैरेलली T2 क्या कर रहा है, आइडियली बेटा है a इज इक्वल टू a माइनस 1000, आइडियली बेटा है। इतना जब हो जाए तब तक T2 आइडियली बैठा। इसने बोला कमिट, T1 ने बोला मेरा हो गया, T2 बोला चला मेरी बारी है। तो T2 ने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया, तब T1 आइडियली बैठा है। तो शेड्यूलिंग हमने पहले ऐसे ही किया है, इस तरह से ही किया है ताकि कुछ क्लेश ना आए। दूसरा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज ये TC1 क्लास है, एक TC2 क्लास है, और यहाँ पे पारस सर लेक्चर ले रहे हैं, पारस सर लेक्चर ले रहे हैं। पारस सर यहाँ पे लेक्चर ले पाएंगे, कंबाइन करो तो होगा ऑनलाइन, वैसे नहीं, लॉजिकली नहीं ले पाएंगे तो कंपलसरी मुझे यहाँ पे MP देना पड़ेगा और यहाँ पे PS और यहाँ पे MP। तो ये आपका टाइम टेबल जैसा शेड्यूल हो गया। शेड्यूलिंग ही इस तरह किया कि कंफ्लिक्ट ना हो, क्लेश ना हो, ठीक है। सपोज आप कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे क्लेश होगा TC1 और TC2 दोनों में, तो फिर ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है। सो शेड्यूलिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग, scheduling is important thing while you are taking the sharing thing। शेयरिंग में जो भी है उसमें अगर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब एक को कमिट करने देना ही पड़ेगा। जैसे आप गूगल स्प्रेडशीट है, वो शेयरिंग ही रहती है, उसमें एक पर्सन अपडेट कर रहा है एक रो को, तो दूसरा पर्सन अगर उसको अपडेट कर देगा तो क्या होगा, रीराइट हो जाएगा ना। तो उससे बेटर क्या करना पड़ेगा, एक को कंप्लीट करने दो, वो बोले कमिट मेरा हो गया, तो फिर आप अपडेट करो उसको। सो दैट इज दी शेड्यूलिंग, क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल, इसमें देखो फुल मोड में नहीं कर रहा और लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये रहा, पहले T2 परफॉर्म कर रहा है, फिर T1 परफॉर्म कर रहा है। तो इस शेड्यूल में कहीं पे भी क्लेश आ रहा है नहीं, A का बैलेंस वही रहेगा, B का भी वही रहेगा, there is no clash, it means consistency will remain maintained, right? So this is the schedule example, scheduling हमने proper किया है। So from next lecture we will move forward with the scheduling
Clear? Serializability and everything. If you have any query, any doubt, you can ask. Scheduling means? Yes. Okay, fine.